मैं ऐसा समझता हूँ अपने खुद के लिए I think this for my own self, कि मुझको भी पश्चाताप करने का प्रतिदिन बहुत ज़रूरत है। that every day it is so necessary even for me to repent. और अभी जो भाई ने शेयर किया अभी, And what brother just shared, हमें रेपेंटेंस के बारे में ज़्यादा बताने का अभी ये ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से, so I don't think I need to once again repeat what repentance is all about. कि और मैं खुद के लिए ये सोचता हूँ कि प्रतिदिन हमको पश्चाताप करना चाहिए। I just think to myself that all of us need to repent every single day, इसीलिए नहीं कि मुझे बोला गया है, not because I've been told to do so, इसीलिए कि मैं रोज पाप करता हूँ। but because I am aware that every day I sin. कभी हमको लगता है कि अरे बोला इसलिए हमको रिपेंट करना चाहिए, Sometimes we think I've been told to repent, so I must do so. बट हमको एहसास होना चाहिए कि मैं एक पापी हूँ। But we should be aware of our own sinfulness. मैं ऐसा, और मुझे ये बात सच है मेरे जीवन में, अगर ये बात सच है this is true of my life, कि मैं रोज पाप करता हूँ that every day I sin और मैं रोज रिपेंट करता हूँ। and every day I repent. मेरा मोटिव, My motives, मेरा रॉन्ग मोटिव, my motives, wrong motives, रॉन्ग एटीट्यूड, wrong attitudes, सेल्फिशनेस, selfishness, प्राइड, pride, एंगर, गुस्सा, गुस्सा करना, मतलब अलग अलग इस चीज से मैं गुजरता हूँ। So I go through all of these sins, और मैं विश्वास करते हैं कि सभी भाई लोग इस तरह से गुजरते हैं। and सभी I believe that all of us go through this, तो इसलिए हमको रिपेंट करना बहुत ज़रूरी है। and that's why it's of utmost importance that we all repent. और मैं दूसरा चीज़ बताना चाहता हूँ विश्वास के ऊपर से, And one more thing I want to share on, and that is on faith. कि विश्वास मैं देखता हूँ कि अब्राहम का विश्वास किस तरह था। I see that the faith of Abraham was something like this. कि अब्राहम का जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, तो प्रॉमिस करने के बाद उसको जो आइज़ाक का जो प्रॉमिस मिला था कि तुझे एक पुत्र होएगा, And God had promised to him that you will have a son, and Isaac. वो प्रॉमिस और आइज़ाक को मिलने तक उसका 13 साल अब्राहम ने वेट किया। So the time span between the promise that he received from God and for Isaac to actually be born was 13 years, and he waited for those 13 years. और मैं एक वचन खाली बताना चाहता हूँ, रोमियो 4 उसका 18 में, And I'd like to just share one verse in Romans 4. उसने निराश 4 रोमियो 4:18, Romans 4:18. उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उसके वचन के अनुसार तेरे वंश ऐसे होंगे, वो बहुत से जातियों का पिता होगा। और 19 में इस तरह से लिखा है, वो तो 100 वर्ष का था, उसने अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा में जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। Romans 4:18 and 19. Who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है विश्वास सिर्फ एक दिन का नहीं है। So we see here that being faithful or having faith is not a matter of one day. परमेश्वर ने जब प्रॉमिस किया कुछ, When the Lord has promised something, so अब्राहम ने 13 साल वेट किया, Abraham waited for it for 13 तो years. विश्वास डटे रहता है So this goes to show the endurance of his faith, कि परमेश्वर देगा, that the Lord will deliver. ये सच्चा विश्वास है। That is true faith. मैं परमेश्वर से मांगता हूँ ऐसा विश्वास मुझे भी दे लॉर्ड, And I ask the Lord, Lord, give me this kind of faith, मैं कभी गिव अप नहीं करूँ, that I will never give up. Prabhu, please, praise the Lord. स्तुति हो। जैसे कल हम शेयर कर रहे थे विश्वास और पश्चाताप के ऊपर, Yesterday we were sharing on repentance and faith. मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा ईसाई जीवन जो है एक टग ऑफ वॉर जैसा है। So I'd like to sort of give the example of tug of war to display our Christian life. एक बाजू शैतान है और दूसरी ओर हमारा मसीह जीवन है। On one side we have our Christian life, and on the other side we have the devil. और जैसे कल भी मैंने शेयर करते वक्त रोमन के 12 चैप्टर के हिसाब से बताया कि हमें रोजाना हमारे जीवन का यज्ञ चढ़ाना है, बलि चढ़ाना है। And as I was sharing yesterday from the book of Romans, that every day we have to offer our bodies as a living sacrifice towards God. क्योंकि यदि हम ये नहीं करेंगे तो हम किसी भी क्षण शैतान की ओर झुक सकते हैं। Because if we are not careful to do this, then at any moment we can end up bowing towards the devil. जैसे कि विश्वास के बारे में कहा गया है, Like we've heard about faith इब्रानियों के पत्री में, in the book of Hebrews, चैप्टर 11 में, chapter 11, जो अनदेखी चीज है उस पे हमारा फेथ होना, इसका मतलब विश्वास होता है।
So to have faith in those things which are unseen, that is called faith. जैसे विजय ब्रदर ने अभी बताया कि अब्राहम ने भी विश्वास रखा था, Like how we heard Brother Vijay just share as to how Abraham had kept his faith. मैं तो कहूँगा कि जीसस ने भी अपने असली कार्य करने के लिए 30 साल तक परमेश्वर पे विश्वास रखा था. And I believe that even the Lord Jesus himself, to start his ministry, he had waited on God for 30 years. 30 साल के बाद में जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि यस नाउ यू कैन स्टार्ट विथ योर ड्यूटीज, तब जाके उसने अपनी सेवकाई चालू करी. And after 30 years, when God the Father gave him the permission to start his ministry, then Lord Jesus went ahead and started his ministry. और उनका विश्वास इतना था यीशु मसीह का कि वो रोजाना एकांत में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करके वो अपना विश्वास दिन ब दिन बढ़ाते थे. And his faith was such that every day the Lord Jesus would find some time to go and spend alone with God the Father, and over there increase his faith every day. क्रूज पे जाने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि तूने मुझे मेरा त्याग क्यों किया है. Even after going on the cross, we see the Lord Jesus over there asking God the Father, God, why have you forsaken me? इतना विश्वास उन्होंने अपने पिता पे रखा हुआ था. Because he had placed so much faith in his Father. तो उसी के ऊपर पौलुस ने भी ये उसको यीशु मसीह के जीवन के बारे में सोचा होगा. And in the same way, the Apostle Paul must have meditated on the life of the Lord Jesus Christ. पौलुस ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करी थी गमलीएल के चरणों में. Apostle Paul had learnt a lot at the feet of Gamaliel. और ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ब्लाइंड विश्वास नहीं करते. And a lot of people who are actually very learned tend to not have blind faith. ये आपका भी शायद अनुभव होगा. This could be your experience too. मगर पौलुस की जिंदगी में जो भी कठिनाई आई, जो भी समस्या आई, उससे उसका विश्वास दिन ब दिन बढ़ता गया. But whatever trials and problems came in the way of Paul, it only served to increase his faith. और इसलिए उसने वो कहा है कि विश्वास और रिपेंटेंस ये हमारे ईसाई जीवन के दो मैजिक शब्द है. इसलिए that is why the Apostle Paul said that repentance and faith are the two magic or secret words of our Christian life. जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि हमें रिपेंटेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है. The more we keep progressing in our Christian life, the more we realize the importance and our need for repentance. हम किसी भी रेलवे गाड़ी में, बस में चढ़ते हैं, We get into any train or bus. हमारा विश्वास होता है कि जो ड्राइवर है वो हमें सही तरीके से ले जाएगा. So at that time we have this faith that the driver will take us safely. वैसे ही यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं तो हमें अपने खुद को हीरो मान के यीशु पे विश्वास करेंगे तो हम यकीनन कह सकते हैं कि हमारा जो रास्ता है वो सही तरीके से निकल जाएगा. In the same way, when we acknowledge and realize that we are nothing, we are zeros, and then put our faith in Jesus Christ, then we can be rest assured that He will take us safely ahead. इसीलिए भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, That's why in Psalm 23 David says कि मैं कितनी भी कठिनाई से जाता रहूंगा मगर तेरा स्टाफ मेरे साथ में है. that even though I walk through the valley even though I walk through the valley of the shadow of death, your rod and your staff they comfort me. और यही दाऊद ने जब उसके हाथों कुछ पाप हुआ था तो पश्चाताप किया हुआ था. And the same David later when he fell into sin, he had repented. मगर ये पश्चाताप के साथ में हम थोड़ा सा यहूदा इस्करियोत की तरफ भी ध्यान देते हैं. Judah. So we even take our attention towards Judah. उसने भी पाप किया हुआ था. Even he had sinned. मगर उसने पश्चाताप नहीं किया. But he did not repent. उसने पछतावा किया. He just had a bad feeling about it. इस वजह से उसको सार्वकालिक जीवन नहीं मिला. And as a result of that, he didn't get a proper life. मगर जो भी उसके बाद में जितने भी यीशु के शिष्य थे, but after that, whoever all the disciples that came of Jesus, पीटर से लेके और बाकी जो शिष्य थे, all the disciples right from Peter, उन सभी को विश्वास और पश्चाताप का ये जो लेसन था यीशु ने दिया हुआ था. all of those disciples had learned the lessons of repentance and faith from the Lord Jesus Christ. और इसी वजह से पौलुस भी कहता है कि पश्चाताप करना और विश्वास रखना बहुत जरूरी चीज है. And as a result, even the Apostle Paul says that to repent and to have faith is very important. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. What I was wanting to share today जो बात के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ is that God is our loving Father. और वो ये है कि परमेश्वर हमारा एक ऐसा पिता है जो हमसे बहुत प्रेम करता है.
You know, we all have dads and moms and brothers and sisters in our life. हम सभी के जीवन में माता पिता भाई बहन होते हैं. Even if we don't have believing dads and moms, we have some believing friends which are very close to us. हो सकता है कि हमारे परिवार में कोई विश्वासी ना हो, लेकिन कोई दोस्त ऐसा हो जो एक विश्वासी है. We see those cups, you know, it comes world's greatest dad. हम लोग वो कभी कभी दुकानों में कप्स देखते हैं गिफ्ट शॉप में, वहाँ पे लिखा रहता है कि दुनिया के सबसे महान पिता. Or world's greatest mom, world's greatest brother, world's greatest sister. या उसी तरीके से दुनिया के सबसे महान माँ या बहन या भाई. But let us think that God is the universe's greatest dad. लेकिन हमें ये याद रखना है कि पूरे सृष्टि का सबसे महान पिता है परमेश्वर. He is so good. He is so good to us that he sacrificed his very own life for us. वो इतना अच्छा है, हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने खुद के जीवन का बलिदान दे दिया हमारे लिए. God is love. He is love personified. परमेश्वर प्रेम है. And his son is Jesus. He is also love. He is also the same essence. और उसका पुत्र प्रभु यीशु वो भी प्रेम ही है. So when God sent his son and when he forsook him, when the sin was upon him, how much it might have cost God to lose his son Jesus for 3 hours like on the cross. और जब भी प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े थे और पूरा दुनिया का पाप उनके ऊपर था, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु के बीच में जुदाई आ गई थी, तो उस समय पिता परमेश्वर को कितना दुख हुआ रहेगा कि अभी पुत्र उनसे दूर है. But God loved us so much that he gave us his son Jesus Christ so that we can have eternal life in him. लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता था कि उसने अपने पुत्र को हमारे ओर दे दिया ताकि हम लोग अनंत काल का जीवन पा सकें. And God loves us so much. Jesus says in the book of Luke chapter 11. हम लोग लूका के चैप्टर 11 में जाएंगे. लूका चैप्टर 11. He also says in Matthew, but let's turn to Luke chapter 11. लूका चैप्टर 11. लूका 11 and verse 11 उसमें वाक्य 11. he says, now suppose one of your fathers is asked by his son for a fish, he will not give him a snake instead of a fish, will he? Or if he is asked for an egg, he will not give him a scorpion, will he? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे. जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की पवित्र आत्मा क्यों ना देगा. So even when we are asking about repenting, we cannot repent unless God grants us that repentance. It is written in Romans, right? The kindness of God leads us to repentance, not the wrath of God. तो जब हम लोग पश्चाताप के बारे में सोचते हैं, तो पश्चाताप भी हम लोग खुद से नहीं कर सकते हैं. प्रभु को अनुमति देनी पड़ती है या वो अनुग्रह देना पड़ता है, जिसके जरिए हम लोग पश्चाताप करते हैं. क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है रोमियो की किताब में कि प्रभु की करुणा हमें पश्चाताप की ओर लेकर जाती है, ना ही उसका दंड. And we need to never think that God will, we need to never repent just because we are afraid that God will punish us, because that is not his ultimate purpose. और हमें इसलिए पश्चाताप नहीं करना है कि एक दिन फिर परमेश्वर मुझे दंड देगा, क्योंकि वो सही उद्देश्य नहीं है पश्चाताप का. Because when we sin or when we fall into sin, it is God's heart that is hurt because of our sin. हमें इसलिए पश्चाताप करना है क्योंकि हमें ये याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग पाप में पड़ते हैं तो परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचती है. And when we repent, it is like in heaven, the angels are rejoicing, the Father is rejoicing, Jesus is rejoicing, everyone of the heavenly host is rejoicing. और जब भी एक व्यक्ति जब भी पाप से मन फिराकर पश्चाताप करता है, तो उस समय प्रभु के सारे फरिश्ते, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, सभी लोग स्वर्ग में जश्न मनाकर आनंद करते हैं. It is not just when he is born again. Every day when we repent, there is a party going on in heaven. वो सिर्फ तभी नहीं होता जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, लेकिन हर दिन जब हम लोग पश्चाताप करते हैं तो उस समय स्वर्ग में एक जश्न मनाया जाता है. And God's love is so strong that when we understand how much he loves us, we will be able to repent wholeheartedly without any half-hearted repentance. और परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि जब हम लोग सच में ये जान लेंगे वो हमसे कितना प्रेम करता है, उस समय हम लोग पूरे मन से फिर पश्चाताप कर सकेंगे. I'm not saying that I've understood the fullness of his love, but I'm seeking that grace so that when I come to know how much he loves me,
Sin's attraction will be nothing compared to the love of God. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रभु के प्रेम को मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ, लेकिन मैं उसके खोज में हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं एक दिन इसको पूरी तरीके से समझ जाऊंगा तो पाप से मैं खुद ही से नफरत करने लगूंगा, वो मेरे लिए कोई आकर्षित चीज फिर नहीं रहेगी। So let us trust God, saying, Lord, your kindness leads me to repentance, not my own efforts at repenting. तो इसलिए मैं फिर प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है, ये बोल के कि परमेश्वर तेरी करुणा मुझे पश्चाताप की ओर लेके जाती है, और and not just my own efforts. और ऐसा नहीं कि मैं खुद के ओर से ये मेहनत करूं पश्चाताप करने की। And even the faith in Jesus Christ, let us have faith in His love for us, that He loves us so much that He gave us His Son. How much more will He give us all things along with His Son? और हमें प्रभु यीशु में भी ये विश्वास रखना है कि हमसे वो इतना प्रेम करता है कि उसने खुद को हमारी ओर बलिदान दे दिया, तो अभी परमेश्वर के साथ कितना कुछ जो हमें नहीं देगा। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Next chapter 20. प्रेरितों के काम चैप्टर 20 में जाएंगे। Here Paul talks about repentance and faith in our Lord Jesus Christ in verse 21. वाक्य 21 में देखेंगे प्रेरितों के काम, वाक्य चैप्टर 20 वाक्य 21। So wherever Paul had gone, he says that I solemnly testify to both Greeks and Jews to repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है कि बरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। He was doing his ministry throughout his life after being saved, getting born again, and his only message was that he preached repentance and faith towards Lord Jesus Christ. तो प्रभु यीशु में आने के बाद अपनी पूरी जिंदगी उसने प्रभु के सेवकाई में बिताई, और उसका प्रचार का संदेश सिर्फ एक ही था कि तुम्हें पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु की ओर विश्वास करना है। So it can happen that a normal person might be guilty and he might think of repenting, and he'll just say, I'm going to give up sinning, I'm going to give up committing crime or robbery or whatever that is. That's also a way of repenting. A non-Christian can also do that. तो ये जो पश्चाताप है, जरूरी नहीं है कि एक विश्वासी ही पश्चाताप करे। हो सकता है कि एक अविश्वासी भी सोचे अपने मन में, उसको अपनी गलती का एहसास हो और वो सोचे कि अभी से मैं गलत काम करना छोड़ दूंगा, चोरी करना बंद कर दूंगा। तो जरूरी नहीं है कि पश्चाताप सिर्फ एक विश्वासी ही करे। I mean, in Hindus and Muslims, they also feel guilty about doing something wrong, and even atheists also, some point in time, the conscience pricks them and they feel that they have done something wrong. They need to repent and change and make restitution resolutions, and they think that's repentance. और ऐसा हो सकता है कि दूसरे धर्मों के भी लोग, हिंदू, मुसलमान या ऐसे लोग जो नास्तिक है, वो लोग को भी अपने विवेक के जरिए मालूम पड़ता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, और फिर वो लोग सोचते हैं कि हाँ, अभी से मैं आगे से ये नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन को सुधारूंगा। But that is incomplete. Repentance, Paul is preaching about repentance and you put your faith in Lord Jesus Christ. लेकिन ये अधूरा है, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने क्या बोला, सिर्फ पश्चाताप ही नहीं करना है, उसके बाद प्रभु यीशु में तुम्हारा विश्वास भी डालना है। We realize that Lord Jesus died on the cross for our sins. He took that punishment on the cross for us, for my sin, for every evil thought that I have thought about, or every evil thing that I have done. Lord Jesus took on the cross. Now that's what he's saying, that you repent, that is good, but now ask Lord Jesus, believe that Jesus has died for your sin, he paid the price. तो विश्वासी होने के नाते हम सभी जानते हैं कि हम सभी के पापों के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मारे गए थे। जो कुछ भी गलत हमने किया था, जो कुछ भी पाप हमने किया था, उसके वजह से प्रभु यीशु ने अपना लहू क्रूस पे बहाया। और यहाँ पे इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है कि पश्चाताप करने के बाद अभी प्रभु यीशु के पास जाओ, उसमें अपना विश्वास डालो और उससे माफी मांगो। If that unbeliever doesn't believe in Jesus, he is not going to get saved. तो अगर वो repent, but he is not going to get saved. तो अगर वो अविश्वासी भले पश्चाताप करे, लेकिन अगर अपना विश्वास और प्रभु यीशु में नहीं डालेगा, तो फिर वो उद्धार नहीं पाएगा। When I know that Lord Jesus Christ being God Almighty and He took that pain, He being all powerful, He had no right to take my pain on the cross. When I know that, that will break me, that will cause me to repent, that will change my life, my mindset towards sin. जब मैं ये समझूंगा कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर थे और इसके बावजूद उनको कोई जरूरत नहीं थी कि वो आके मेरे लिए अपना जान दे, लेकिन फिर भी वो आए क्रूस पे मरे मेरे पापों की वजह से, तो वो मुझे अंदर से तोड़ देगा। और जब मैं उसको समझूंगा, मैं खुद से पश्चाताप कर दूंगा।
That's why Paul says that the love of Christ constrains us. It's not that me following certain yogas and trying to be good. It's about seeing who God is and what He has done for me. That and His love that was demonstrated on the cross. That shows how much He loves me, and that changes my mindset towards sin. तो जैसे अपोस्टल पौलुस ने लिखा है कहीं पर कि प्रभु यीशु का प्रेम हमें हमारे ऊपर नियंत्रण रखता है। तो ऐसा नहीं कि मैं खुद के ताकत से, योगा से या कोई अच्छे कामों से खुद को शुद्ध करूं, खुद को पवित्र करूं, नहीं। लेकिन जब मैं देखूंगा कि प्रभु यीशु मुझसे कितना प्रेम करता है कि मेरे लिए वो क्रूस पे मरा था, तो खुद से ही मुझे एक उद्देश्य मिल जाएगा कि मैं पश्चाताप करूंगा और फिर सही तरीके से जीऊंगा। So when I came to know about this salvation message, it was not that I came to know I was really a sinner, or I'm very bad and I'm going to go to hell. It really struck me when that Lord Jesus, who had no business to die, and He's made a way. I didn't have faith in Jesus, but when I came, when the Holy Spirit opened who Jesus is, that time really true repentance came in my life. तो जब मैं शुरुआत में जब मैंने उद्धार का प्रचार सुना था, संदेश सुना था, तो उस समय मुझे ये बात इतनी नहीं लगी थी कि हाँ मैं पापी हूँ या मैं नरक में जाने वाला हूँ। लेकिन ये बात मुझे ज़्यादा चुभा था कि परमेश्वर, प्रभु यीशु परमेश्वर थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो आके अपना जान मेरे लिए दें, लेकिन फिर भी वो आए और मेरे पापों के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया, अपना जीवन दिया। वो प्रेम को देख के फिर मैंने सच में पछतावा उस दिन किया। If you ask any sinner, he'll not say that I am a sinner. I am a good person. I have not done evil. What is repentance? What is sin? I don't know, he'll say. कोई अगर सामान्य पापी से तुम पूछोगे तो वो बोलेगा नहीं, मैं तो नहीं सोचता कि मैं पापी हूँ, मैं काफी अच्छा व्यक्ति हूँ, पश्चाताप, ये नया जन्म, ये सब क्या है? Before being born again 10 years ago, or around 13 years ago, I was thinking that I am a good person. I have not done any evil, gross sin like murder or anything. Why should I change my life? मैं भी उसी तरीके से सोचता था। तकरीबन 13 साल पहले मैं सोचता था कि मैं भी काफी अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने कोई ऐसे बड़े बुरे पाप नहीं किए हैं, किसी को मारा नहीं है, कुछ नहीं किया है, तो फिर मैं क्यों पछतावा करूँ? When the Holy Spirit opens the love of Jesus on the cross, that pain that He took, that time really Holy Spirit caught my heart and showed me I am going to go to hell. That Jesus took it on the cross for my behalf. Every smallest thing that I have disobeyed in God's word, Jesus took it. And that's how I'll be saved. If I just put my faith, that's when the Holy Spirit caught me and caused my heart to change, my mindset to change. It's not because I wanted to be good, but the love of Christ constrained me. और फिर पवित्र आत्मा हमें दिखाता है प्रभु के क्रूस के द्वारा कि कितना प्रभु यीशु का प्रेम है हमारी ओर। और जब भी उसने मुझे दिखाया कि मैं इतना पापी था, इसके बावजूद प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरे, और वो देखने के बाद जब मैंने वो प्रेम को देखा, एहसास किया, तो मुझे फिर मालूम पड़ा कि मुझे पछतावा करना है और फिर प्रभु के लिए जीना है। And the same mindset has to be every day in my life now. If I want to fellowship with Jesus, whenever I get irritated, bitter, angry, jealous, same repentance I have to take it before the Lord. Lord, I have sinned against you, like David said, and I need to change my mindset and repent and confess and apologize. That's how we continue to saved and live for Jesus. और यही मनोवृत्ति मुझे आज भी रखनी है। अगर आज मैं पाप में पड़ता हूँ, गुस्सा, जलन या कोई भी घमंड, कोई भी पाप में पड़ता हूँ, तो मुझे बोलना है कि प्रभु तू मेरे लिए मरा है, ये पापों के लिए अपना लहू तूने बहाया है, तो मुझे पछतावा करना है हर रोज। काम उसका 20वां अध्याय वर्स 19 और उसका 19वां वचन। सर्विंग द लॉर्ड विद ऑल ह्यूमिलिटी ऑफ माइंड, अर्थात बड़ी दीनता से and with many tears. और आंसू बहा बहा कर। This part of the verse really struck me. और बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर प्रभु की सेवा करना। जब इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, What is the secret of serving God? और परमेश्वर की सेवकाई करने में गुप्त बात क्या है? Effectively. और बहुत सही तरीके से उसे करने में गुप्त बात क्या है, उसका रहस्य क्या है? You know, many a times we can have a false kind of humility in us. कई बार हमें वो जो झूठी नम्रता है हमें वो होती है। God wants us to take up, maybe do something in the church. और कई बार हो सकता है परमेश्वर चाहते होंगे कि हम कलीसिया में कुछ काम करें या सेवकाई करें। Open up, share, encourage others.
और कई बार हम खुले में आए और परमेश्वर के संदेश को बांटकर दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करें, But at that time we tend to say, oh, I'm nothing, I'm nobody. लेकिन ऐसा जब मौका या अवसर हमारे पास आता है तो हम कहते हैं कि हाँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता I'm हूँ, not worthy, I can't do anything, I don't have any ability. मैं इस काम के लिए अयोग्य हूँ और मुझ में कोई काबिलियत नहीं है इस काम को करने के लिए। Yet at the same time, God has given us abilities. लेकिन उसी स्तर पर हम देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें काबिलियत से भरा हुआ है। We are using those abilities to do quite well in the world. हम उन्हीं काबिलियत को संसार के कामों में बहुत सही तरह से इस्तेमाल करते हैं और बहुत सफलता पाते हैं। But when it comes to church, we shrink back. लेकिन जब कलीसिया में उस काबिलियत को लागू करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। That is not true humility. और इसको हम एक सच्चा नम्रता नहीं कहते। True humility is to say, Lord, I am nothing. और सच्चा नम्रता ये होता है जहाँ पर हम कबूल करते कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। You are everything. You are everything. आप सब कुछ हैं। And because of that, I have no ambitions, no desires, no plans. और उसकी वजह से मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरी कोई योजना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। Whatever your will is, Lord, let it be done. आपकी जो कोई भी मर्जी हो प्रभु, वही मेरे जीवन में पूरा हो जाए। I will really see whether I am humble before God. और मैं तभी सचमुच में जानूंगा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र हूँ या नहीं। Not when I say humble things with my mouth. तब नहीं जब मेरे मुंह से सिर्फ नम्रता के शब्द निकलते हैं Or act very weak. या बहुत कमजोर तरीके से बर्ताव रहा But in हो। my hidden life, लेकिन मेरे गुप्त जीवन में am I obedient to God? क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूँ? Am I faithful to God? क्या मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूँ? That determines true humility. और ऐसे में उस जीवन से हमें पता चलता है कि हम सच्चे नम्रता में चलते हैं या नहीं। The other thing that struck me about Paul here was he talking about his tears. और दूसरी बात यहाँ पर जो पौलुस कहता है, जिस बात ने मुझे छू लिया, वो है उसके आंसू बहाना। You know, there are so few times when I have been moved to tears in concern to my Christian life. और मेरे मसीह जीवन को लेकर मेरे जीवन में बहुत ऐसे कम समय है, कम बारी है जब मैं आंसू के साथ रोने लगा। I'm so chilled out about my Christian life. मेरे मसीह जीवन को लेकर मैं बहुत ही सुखदायी हूँ। God shows me my lack परमेश्वर मुझे मेरी घटी को दिखाता है in reading the Bible, कि जब परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मेरी घटी को दिखाता है, in not being faithful in the little things, और छोटी छोटी बातों में मैं जब विश्वासियों की नहीं रहता, उन बातों को परमेश्वर दिखाता है, in not really being wholehearted but seeking my own still. और पूरी तरह से परमेश्वर की ओर मैं पूरे दिल से नहीं व्यवहार करता, लेकिन अपनी खुद की मर्जी को कई बार पूरा करता हूँ। But my reaction to that is so relaxed. लेकिन इन सारे घटी के प्रति मेरी जो प्रतिक्रिया है बहुत ही साधारण है, उसमें कोई खास बात नहीं है। I say, yeah, it's bad, I need to change. मैं कहता हूँ हाँ ये बुरा है, मुझे बदलना जरूरी है। Yeah, okay, now what's next? Let's move on. लेकिन अब क्या, अभी आगे तो चलना ही है, चलो आगे बढ़े। You know, this is the reason why God doesn't use me. और इसी वजह से परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं करता। If I really want to be used by God, और यदि मैं यही चाहूंगा कि कभी कभार परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर ले, I need to have genuine humility before God. और मुझे परमेश्वर के सामने वो सच्चा जो नम्रता है वो मुझ में होना जरूरी है। And I need to have an inner life of tears. और मेरे अंदर जो भीतरी जीवन है मनुष्यत्व में, आंसुओं का वो जीवन होना जरूरी है। Otherwise, I'll not be used by God. ऐसा अगर नहीं होता तो परमेश्वर में इस्तेमाल नहीं करेगा। We all have at some level the desire to be used by God. हमें हर एक व्यक्ति में कई एक स्तर पर ऐसा जरूर एक इच्छा होता है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे। No one is stopping him from using you. और कोई भी आपको परमेश्वर के हाथों इस्तेमाल होने के लिए आपको रोकता नहीं है, Except our own carelessness. लेकिन हमारी खुद की लापरवाही से जो है ऐसा नहीं हो पाता। And our own chilled out attitude towards our failures. और हमारी खुद की जो बहुत ही साधारण रीति से खुशहाल जीवन जो हम व्यतीत करते हैं हमारे हार की तरफ प्रति, उसके वजह से हमें कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता। This is my own struggle. ये मेरे खुद का एक संघर्ष है। See such a lack of tears in my own Christian life over my shortcomings. और मेरे मसीह जीवन में मेरे खुद की कमी घटियों को लेकर जो आंसू मैं बहाना चाहिए लेकिन मैं नहीं बहाता, उसके वजह से मैं इस्तेमाल नहीं होता।
If you really want to be used by God, और यदि आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपका सही तरीके से इस्तेमाल करे, when God shows you these lacks, जब परमेश्वर आपके जीवन में इन सारे कमी घटियों को आपको बताता है, see why you're not being bothered about it. आप देखो कि आप क्यों उसकी तरफ आपको कोई चिंता नहीं होता। If you're not be honest, say, God, Lord, I'm not bothered about it. और आप वहाँ पर ईमानदारी से परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर कितनी बार तूने जो कमी घटियों को मुझे बताया है, लेकिन मुझे उसके प्रति कोई मुझे परवाह नहीं होता। Do a work in me so that I'll come to a place wherein these things bother me more than anything else. और मुझ में ऐसे ही कार्य को कर, तो ऐसा काम कर कि सारे बाकी के चीजों से बढ़कर इन चीजों के प्रति मेरे दिल में एक परवाह हो जाए। That I really weep over these things, that these things trouble me. ताकि इन सारी बातों को, इन सारी कमी घटियों के ऊपर मैं आंसू बहाकर रोऊं। People around me are perishing, going to hell. मेरे आसपास के लोग जो है वो नष्ट होते जाते हैं, नरक की तरफ जाते हैं। But in my daily life, I am just living as if anyone else is living. लेकिन मेरे रोजमर्रा के जीवन में बिल्कुल साधारण तरीके से कोई और व्यक्ति जीने के समान मैं भी जीवन बिताता हूँ। I read this one thing about William Booth. और मैंने एक ऐसा कुछ पढ़ा था विलियम बूथ के बारे में। See, I think some of his junior co-workers were in some place and they were preaching there. और उनके नीचे जो काम करने वाले लोग थे वो किसी एक जगह पे थे और वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। But they were not seeing much result. लेकिन उनके प्रचार के जरिए से उन्होंने बहुत सारा परिणाम वहाँ पे नहीं देखा। So they wrote back to William Booth. और इसलिए उन्होंने खत में विलियम बूथ को वापस एक saying खत that we are लिखा। not seeing much of God move here. और तो उन्होंने खत में लिखा विलियम बूथ को कि यहाँ पर हम परमेश्वर की बड़ी बड़ी कार्य को नहीं देख पाते। William Booth responded in 2 words. और विलियम बूथ ने उन्हें सिर्फ 2 शब्दों में पत्रों को वापस ले भेजा। Weep more. तुम अधिक आंसू बहाओ। I think that is a word for all of us. और वही वचन हम सभी के लिए है।